एजेकियल चैप्टर 34 हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एजेकियल इज एडमोनिश्ड ऑफ हिज ड्यूटी। पिता परमेश्वर के आत्मा हमारी सहायता करो, ये वचन हम समझ पाए, ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। First verse say, Again the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coasts, and set him for their watchman, if when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people, then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. He heard the sound of the trumpet and took not warning, his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul. But if the watchman see the sword come and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come and take any person among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will require at the watchman's hand. So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die. If thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity. But thou hast delivered thy soul. Therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel. Thus ye speak, saying, If our transgressions and our sins be upon us, and we pine away in them, how should we then live? Say unto them, As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways. For why will ye die, O house of Israel? Therefore, thou son of man, say unto the children of thy people, The righteousness of the righteous shall not deliver him in the day of his transgression. As for the wickedness of the wicked, he shall not fall thereby in the day that he turneth from his wickedness. Neither shall the righteous be able to live for his righteousness in the day that he sinneth. When I shall say to the righteous that he shall surely live, if he trust to his own righteousness and commit iniquity, all his righteousness shall not be remembered, but for his iniquity that he hath committed, he shall die for it. Again, when I say unto the wicked, Thou shalt surely die, if he turn from his sin and do that which is lawful and right, if the wicked restore the pledge, give again that he had robbed, walk in the statutes of life without committing iniquity, he shall surely live, he shall not die. None of his sins that he hath committed shall be mentioned unto him. He hath done that which is lawful and right, he shall surely live. Yet the children of thy people say, The way of the Lord is not equal, but as for them, their way is not equal. When the righteous turneth from his righteousness and committeth iniquity, he shall even die thereby. But if the wicked turn from his wickedness and do that which is lawful and right, he shall live thereby. Yet ye say, The way of the Lord is not equal.
O ye house of Israel, I will judge you every one after his ways. And it came to pass in the 12th year of our captivity, in the 10th month, in the 5th day of the month, that one that had escaped out of Jerusalem came unto me, saying, The city is smitten. Now the hand of the Lord was upon me in the evening, afore he that was escaped came and had opened my mouth until he came to me in the morning, and my mouth was opened, and I was no more dumb. Then the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, they that inhabit those wastes of the land of Israel speak, saying, Abraham was one, and he inherited the land. But we are many, the land is given us for inheritance. Wherefore say unto them, Thus saith the Lord God, Yea, eat with the blood, and lift up your eyes toward your idols, and shed blood, and shall ye possess the land. Ye stand upon your sword, ye work abomination, and ye defile every one his neighbor's wife, and shall ye possess the land. Say thou thus unto them, Thus saith the Lord God, As I live, surely they that are in the wastes shall fall by the sword, and him that is in the open field will I give to the beasts to be devoured, and they that be in the forts and in the caves shall die of the pestilence. For I will lay the land most desolate, and the pomp of her strength shall cease, and the mountains of Israel shall be desolate, that none shall pass through. Then shall they know that I am the Lord, when I have laid the land most desolate because of all their abominations which they have committed. Also, thou son of man, the children of thy people still are talking against thee by the walls and in the doors of the houses, and speak one to another, every one to his brother, saying, Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the Lord. And they came unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. For with their mouth they shew much love, but their heart goeth after their covetousness. And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice, and can play well on an instrument, for they hear thy words, but they do them not. And when this cometh to pass, lo, it will come, then shall they know that a prophet hath been among them. Chapter 34. The shepherds of Israel reproved. First verse. Say, and the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God unto the shepherds, Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? Yea, eat the fat, and ye clothe you with the wool. Ye kill them that are fed, but ye feed not the flock. The diseased have ye not strengthened, neither have ye healed that which was sick, neither have ye bound up that which was broken, neither have ye brought again that which was driven away, neither have ye sought that which was lost, but with force and with cruelty have ye ruled them, and they were scattered, because there is no shepherd. And they became meat to all the beasts of the field when they were scattered. My sheep wandered through all the mountains and upon every high hill. Yea, my flock was scattered upon all the face of the earth, and none did search or seek after them. Therefore, ye shepherds, hear the word of the Lord. As I live, saith the Lord God. Surely because my flock became a prey, and my flock became meat to every beast of the field, because there was no shepherd, neither did my shepherds search for my flock, but the shepherds fed themselves and fed not my flock.
Therefore, O ye shepherds, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God, Behold, I am against the shepherds, and I will require my flock at their hand, and cause them to cease from feeding the flock. Neither shall the shepherds feed themselves any more, for I will deliver my flock from their mouth, that they may not be meat for them. For thus saith the Lord God, Behold, even I will both search my sheep and seek them out, as a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered. So will I seek out my sheep, and will deliver them out of all places where they have been scattered in the cloudy and dark day. And I will bring them out from the people and gather them from the countries, and will bring them to their own land, and feed them upon the mountains of Israel, by the rivers, and in all the inhabited places of the country. I will feed them in a good pasture, and upon the high mountains of Israel shall their fold be. There shall they lie in a good fold, and in a fat pasture shall they feed upon the mountains of Israel. I will feed my flock, and I will cause them to lie down, saith the Lord God. I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick. But I will destroy the fat and strong, and I will feed them with judgment. And as for you, my flock, O my flock, thus saith the Lord God, Behold, I judge between cattle and cattle, between the rams and he goats. Seemeth it a small thing unto you to have eaten up the good pasture? But ye must tread down with your feet the residue of your pastures, and to have drink of the deep waters, but ye must foul the residue with your feet. And as for my flock, they eat that which ye have trodden with your feet, and they drink that which ye have fouled with your feet. Therefore, thus saith the Lord God unto them, Behold, I will judge between the fat cattle and between the lean cattle, because ye have thrust with side and with shoulder, and pushed all the deceased with your horns, till ye have scattered them abroad. Therefore will I save my flock, and they shall no more be a prey, and I will judge between cattle and cattle, and I will set up one shepherd over them, and he shall feed them. Even my servant David, he shall feed them, and he shall be their shepherd. And I, the Lord, will be their God, and my servant David a prince among them. I, the Lord, have spoken it. And I will make with them a covenant of peace, and will cause the evil beasts to cease out of the land, and they shall dwell safely in the wilderness, and sleep in the woods. And I will make them and the places round about my hill a blessing, and I will cause the shower to come down in his season. There shall be showers of blessings. And the tree of the field shall yield her fruit, and the earth shall yield her increase, and they shall be safe in their land, and shall know that I am the Lord, when I have broken the bands of their yoke, and delivered them out of the hand of those that served themselves of them. And they shall no more be a prey to the heathen, neither shall the beast of the land devour them, but they shall dwell safely, and none shall make them afraid. And I will raise up for them a plant of renown, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the heathen any more. Thus shall they know that I, the Lord their God, am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, saith the Lord God. And ye, my flock, the flock of my pasture, are men, and I am your God, saith the Lord God. Thank you, Jesus.
हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी की पुस्तक 33 अध्याय 34 अध्याय। पढ़ेंगे। यह हिजकिय्याह इस्राएल का पहरुआ। 33 अध्याय पहले वचन से। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। देखो, ये है गॉस्पल का काम, ठीक है। हमको परमेश्वर ने बता दिया है जजमेंट आने वाला है, मेरा क्रोध आने वाला है। तो अगर हमने जाकर दूसरों को नहीं बताया ये बात, तो फिर हमारे ऊपर उसका दोष रहेगा। इसके लिए हमने लोगों को सीधे सीधे मुंह बता देना है कि परमेश्वर का न्याय पड़ने वाला है और हमको परमेश्वर के अधीन हो जाना ज़रूरी है। यीशु मसीह को सुन लेना ज़रूरी है, ठीक है। हमारा जिम्मेदारी है, अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारे ऊपर दोष पड़ा रहेगा, हम न्याय के सामने हो जाएंगे। ओके, 5 वचन से आगे। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूँगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। देखा, परमेश्वर क्या कह रहा है? तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर। ओके, तो हम परमेश्वर के साथ अकेले में बैठकर जब वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर हमको सिखाता है, तब हम लोगों को चिताते हैं, हम लोगों को सुनाते हैं। ओके, तब हम लोगों को सुधार लाने का रास्ता दिखा सकते हैं, हम लोगों को छुटकारे के अंदर लेकर आ सकते हैं, बीमारियों से अलग होने के लिए रास्ता दे सकते हैं। सब बातों के जवाब हमको परमेश्वर के मुंह से सुनने के कारण हो जाता है। तो अगर हम पर्सनल टाइम नहीं देंगे परमेश्वर को, तो हम सुन नहीं पाते हैं। ओके, और सुनेंगे तो फिर प्रचारकों के सुनेंगे, और सुनेंगे तो फिर और दूसरे तरह से कुछ परमेश्वर के वचन सुनेंगे। तो इस तरह से हमारा सुनना लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ज़रूरी बात आपको समझ में आना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन सुने बगैर आप कुछ लाभदायी नहीं बन सकते हैं। ओके, यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तो निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, हाँ, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। देखा, यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, इतना अगर मैं बोल दूँ कि निश्चित है दुष्ट तू मरने ही वाला है। ओके, और अगर मैं उस दुष्ट को वो अशुद्ध मार्ग के विषय में ना बताऊं कि देख तू ये दुष्टता कर रहा है, इसकी वजह से तू मरेगा, ओके, तो मुश्किल में पड़ जाएगा, तुझे पता चलना चाहिए, तेरे अधर्म तुझे फंसा के रखे, तू अधर्म में मरेगा। ओके, तो तुझे यीशु मसीह को मान लेना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन है उसे सुन लेना चाहिए और तूने उसके अधीन हो जाना चाहिए। अगर हमने उसको ये बातें कड़वी है फिर भी उसको नहीं बताई, तो उसका बदला परमेश्वर हमारे ऊपर रख देता है। खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए, चिताना पड़ता है हमको। चिताना मतलब बहुत प्यार की बात नहीं है। चिताना मतलब हमारे विरोध किए हुए बातें होती है, यानी हमको पसंद नहीं आएगा ऐसे बातों को हमसे छुड़वाया जाता है,
हमको पसंद है वो बातें हमारे से दूर कर दी जाती है। हमारे बातें परमेश्वर की है ये हम बोलते हैं तो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम परमेश्वर की ओर से उनको बता रहे, ये बताएंगे तो उनको घमंड फील होता है, ये क्यों बता रहे हैं हमको, हम क्या पढ़ नहीं सकते क्या बाइबल में, हमको मालूम नहीं है क्या। यानी उनका एक भी जरिया ऐसा नहीं है कि वो हमारी बात को आदर करके सुन सके। ओके तो इसके लिए फिर हमको उनको डांटना पड़ता है। देखो अगर आप नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, अधर्म में फंसे रहोगे, मरोगे, तो परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर आ जाएगा। आपको उसमें से छुटकर आज़ाद हो जाना है। चिताना पड़ता है उनको, ओके, कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे। और देखिए, वह अपने मार्ग से न फिरे तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। हालेलुया। तो हमारे प्राण का सुरक्षा इसी में है कि हम लोगों को बता दें परमेश्वर क्या है और क्यों है और क्या करने जा रहा है वो। ओके, अगर नहीं बताएंगे तो हम अपने प्राण को मुश्किल में डाल रहे हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी 10 वचन से आगे। फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कहे, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहे? इसलिए तो उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं, प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो, प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूँगा। यरूशलेम के पतन का समाचार 21 वचन से आगे। फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी। देखा ये क्या लिखा है यहाँ पर? कुछ समय पहले यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी। तो मैंने आपको क्या बोला? रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के वक्त में, कन्फेशन प्रेयर के वक्त में मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ही मेरी आंख आज खुली तो परमेश्वर मुझसे बात किया। मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए वो बात को सुना। क्या था वो? कि मैं आत्मा के जो डैमेजेस है उसको रिपेयर करने का रास्ता चलाना शुरू किया हूँ। ओके, मैं आत्मा के डैमेजेस में छुड़ाने का रास्ता तुमको चलाना शुरू कर चुका हूँ। और ये बात को मैंने कैसे पाया? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, तब मैंने पाया। ओके, तो जब हम वचन पढ़ाते सिखाते, यहोवा की शक्ति हम पर उतर कर आए, तब हम लाभदायी बनते हैं सिखाने में, पढ़ाने में, सब कुछ करने में। ओके,
और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया। अतः मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गूंगा न रहा लोगों के पाप। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं, अब्राहम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इस कारण तू उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तो उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, निस्संदेह जो लोग खंडहरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे, और जो खुले मैदान में रहता है और उसे मैं जीव जंतुओं का आहार का कर दूंगा, और जो गढ़ों और गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मरेंगे। मैं उस देश की उजाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और उसके बल का घमंड जाता रहेगा, और इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। इसलिए जब मैं उन लोगों की किए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जाने लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। भविष्यद्वक्ता के संदेश का परिणाम 30 वचन से आगे। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है परंतु उन पर चलते नहीं। इसलिए जब यह बात घटेगी, और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। इस्राएल के चरवाहे 34 अध्याय पहले वचन से। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के न होने के कारण, देखा मैंने बोला ना आपको यहाँ पर, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। डेंजरस जोन है ये, ओके। वे चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, वे सारी पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और न तो कोई उनके सुधि लेता था और न उनको ढूंढता था। तो इस प्रकार से कलसिया में परेशान सताव सहने के बाद लोग कलसिया के बाहर फेंक दिए जाते हैं, ओके, क्योंकि वो सताव सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और सताव का एक लिमिट रहता है, उस लिमिट के पार हो जाता है, वो कलसियाएं छोड़कर निकल जाने के बजाय उनके दूसरे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो वहाँ से लेकर जब निकल जाते हैं तो आप देखेंगे उनको, वो भटकते रहते हैं, वो तितर बितर कर दी गई है। उनका कारण कौन है? उनका चरवाहा उनको संभाल नहीं पाया,
ठीक है, उनका चरवाहा उनके लिए सही चरवाही कर नहीं पाया। देखिए 7 वचन से आगे, इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे की न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियां की सुध ही नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा, जो फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार न हो। तो हम निकल जाना कलसिया से, इसका कारण क्या हो जाता है? परमेश्वर हमको वहाँ से निकल जाने के लिए रास्ता दे देता है, कारण दे देता है। ओके, और हमको लगता है कि हमने कलसिया छोड़ के गलती किया। नहीं, परमेश्वर जानता है तुम वहाँ रह के कुछ कर नहीं पाओगे, उससे अच्छा तुम वहाँ से बाहर निकल जाओ। ओके, मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार न हो। और फिर आप देखो, मैं नहीं जानती हूँ आप क्या है, कहाँ है, कैसे, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। अगर आप कलसिया के सताव से परेशान हुए जा रहे, तो नंबर 1, एक तो उनके अंदर काइन जैसा स्वभाव है जो आपसे जलन कर रहा है। दूसरा, व्यभिचारिणी है जो आपका बहुमूल्य जो जीवन है, प्राण है, आहेर करना चाहती है, आपको आत्मिक डैमेज करना चाहती है। और तीसरा कि आपका चरवाहा आपको वहाँ पे परेशान करने के लिए कारण हो सकता है। ओके, तो आप जो भी है निपट लेना है उससे, ठीक है, परमेश्वर से मांग लेना है, क्या चाहता है वैसे हो जाना चाहिए। परमेश्वर सहते मत बैठिए वहाँ पर, परमेश्वर से रास्ता ले लीजिए, जो परमेश्वर कहे आप वो रास्ता ले लीजिए। 11 वचन, अच्छा चरवाहा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहाँ वे अच्छी हरियाली में बैठा करेगी और इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेगी। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर हमारी चराई के बारे में चिंता रखता है, तब देखिए कितना प्यारा अनुभव परमेश्वर हमको देता है। ओके, अच्छा चरवाहा, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। अगर कलसिया में आपको सही चरवाही नहीं मिल रही है, तो मैंने आपको बताया 3 प्रकार हो सकते हैं आपके सताव के कलसिया के अंदर। ओके, आपका सताव इसीलिए किया जा रहा होगा क्योंकि आप जेलस किए जा रहे हैं कि आप उनके स्थान को छीन लेंगे, ऐसा उनको डर है। ओके, या आप बहुत ज़्यादा उन्नति ले लेंगे, उनसे ज़्यादा उन्नति हो जाएगी आपकी, ऐसा आपके विषय में उनको डर है। दूसरी बात, हो सकता है उनके अंदर व्यभिचारिणी आत्माओं का काम चल रहा है, जिसके कारण व्यभिचारिणी आत्माएं बहुमूल्य प्राणों को आहेर करती है। वो असली मसीह नहीं हो सकते, वो ढोंग कर रहे, नकलीपन अपने मुखावटा पहन के मसीह बना हुआ आपके सामने रहेंगे शायद से, लेकिन उनके अंदर व्यभिचारी आत्मा हो सकती है जो आपका बहुमूल्यता जो है, प्रेशियसनेस जो है, पवित्र आत्मा की सुंदरता जो हमारा चरित्र रहता है, वो ख़त्म करना चाहती है। ठीक है, तो आपके अंदर का परमेश्वर का उपस्थिति वो ख़त्म करना चाहती है।
ओके, मेरे साथ ये हो चुका है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और तीसरी बात ये हो सकता है कि आपका चरवाहा इसकी जिम्मेदारी है, आपके सताव की जिम्मेदारी है कि वो आपके ऊपर सही ध्यान नहीं दे रहे, इसकी वजह से आपका परेशानी वहाँ कलसिया में हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ये हमेशा आप बोलते रहिए अपने ऊपर। अच्छा चरवाहा का वचन जो दिया है, क्या दिया है, 11 वचन से बारंबार बोलिए इसके ऊपर आप, ओके। 34 अध्याय का 10 वचन से परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा और उनको फिर उन्हें चरने न दूंगा, वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार न हो। अच्छा चरवाहा 11 वचन से आगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से झुंड में बटोरता है। हालेलुया। देखा, परमेश्वर कभी भी भटका नहीं देता है इंसान को कहीं पर भी। मुझे ये सारा चीज़ जो दबाव डाल के चलाया जाता है वो मुझे पसंद नहीं आता है। यहाँ पे खुल्लम खुल्ला लिखा है, परंतु तुमने बल और ज़बरदस्ती से अधिकार चलाया है, बल और ज़बरदस्ती से अधिकार चलाया है ना। ये कहाँ लिखा है वचन, ये 34 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, ओके। तो हम ध्यान रखना है, ज़बरदस्ती और बल से आप चलाएंगे तो आप चरवाहे के विरोध, चरवाहे के कैरेक्टर के विरोध हो जाता है वो, ठीक है। और देखिए फिर परमेश्वर का, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा, मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा। तो पास्टर क्रिस कहाँ है और हम उनके रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का आनंद ले रहे, वो हमारी चरवाही कर रहे हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया, कितने अलग अलग देशों में से हमको बाहर निकाल के उनके साथ जोड़ लिया। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज, पूरे देश विदेश में से प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की मिनिस्ट्री, पूरे देश विदेश में से लोग उनके लाभ उठा रहे, उनको आश्रय मिल रहा है उनके मिनिस्ट्री के नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम इकट्ठे किए जा रहे परमेश्वर से, और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊँगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश में सब बसे हुए स्थानों में चराऊँगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊँगा और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पर उनको चराई मिलेगी, वहाँ वे अच्छी हरियाली में बैठा करेगी और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेगी। देखो, उत्तम से उत्तम चराई चरेगी, यानी इतनी बड़ी बड़ी गहन बातें परमेश्वर हमें देगा जो किसी के पास नहीं है। हालेलुया। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा। हालेलुया। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटा और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनको चरवाही न्याय से करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और मेंढों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँवों से रौंद दो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँवों से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियां को तुम्हारे पाँवों से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पाँवों से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यो कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूँगा। तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती है, इस कारण
मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लूटेगी, और मैं भेड़ के और बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनके चरवाही करेगा, और वह मेरा दास दाऊद होगा और उनको चराएगा, और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं का देश में न रहने दूंगा। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मेह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे और न वन पशु फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनको कोई न डराएगा। मैं उनके लिए उपजाऊ बारी उपजाऊंगा और वे देश में फिर सूखी न मरेंगे, और न जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ, और वे जो इज़राइल का घराना है वे मेरी प्रजा है। मुझ परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई के भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके आत्मा ने हमारी सहायता करके हमें वचन सिखाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इसके बाद परमेश्वर पिता तेरा वचन आत्मा के द्वारा हम में पिता और खुलता जाए और बढ़ता जाए और फैलता जाए और हमारी ताकत बनता जाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 14 चैप्टर 22 वर्स से 31 वर्स। 1 क्रॉनिकल्स 25 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 22 वचन से 31 वचन। पहले इतिहास की पुस्तक 25 अध्याय। हम पढ़ेंगे अकेले में बैठकर, व्यक्तिगत समय में। जैसे ही हम पढ़ेंगे परमेश्वर का आत्मा इन वचनों को हमको सिखाएगा। परमेश्वर के वचन सीखते समय परमेश्वर का आत्मा हमें सुधारेगा, हमारे व्यक्ति को बनाएगा जैसा वो चाहता है, उस समान व्यक्ति को, ताकि हम परमेश्वर के गुणों से भर जाए और परमेश्वर के काम करने वाले बन जाए। आमीन। ऐसा हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ निश्चित उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम आपसे विनती करते हैं, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा फिट एंड फिक्स कीजिए। हमें परमेश्वर पिता ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन।